Dear students, welcome back to my channel. So today I will cover some important chapter for midterm examination of class 10 physics. That is, first of all, I will cover work power energy because in most of the school this is the common chapter in midterm examination. So in work power energy, as you know, theory portion work done equal to Fs, force and product of force and displacement, or distance work done is the product of force and distance covered by body in the direction of the force. इसका ऐसा यूनिट जूल. Then when there is some angle between force and displacement, work done equal to Fs cos theta. When theta equal to 0, work done is maximum. When theta equal to 90 degree, work done is minimum. When theta equal to 180 degree, work done is negative. Okay, these things are well known to you. So example of negative work, when you throw a stone in upward direction, so in this case the angle between force, gravitational force and displacement is 180 degree, naturally the work done is minus. Okay, then in work power energy, potential energy equal to mgh. Unless otherwise specified, you should take that out, think that one gravitational potential energy, because potential energy कहा मतलब दो प्रकार का potential energy, एक elastic potential energy लाइक एक स्प्रिंग को जब हम एक्सपांड करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो इसी में जो एनर्जी स्टोर होता है माने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन हम प्रत्येक कैलकुलेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, जिसको हम कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके, देन द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड मोमेंटम k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m. सो ये भी कभी कभी स्मॉल न्यूमेरिकल इसका ऊपर बेस होके आता है. देन पावर इक्वल टू fv, इसका ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है. देन नेक्स्ट स्टेप हम अभी जाएंगे ड्यू माने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू mgh. आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो माने about this, so you can go through that video. So total energy for a free falling body is mgh. In other words, you just know the trick. Potential energy at the highest point equal to kinetic energy at the ground. Suppose इसको मैं डालूंगा नीचे, so ये इससे आया हाईएस्ट पॉइंट में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से h, so total energy equal to sum of potential energy and kinetic energy. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, बट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 because velocity at the highest point is 0. So here only total energy equal to mgh because kinetic energy is 0. So when it is falling, suppose this is ground, इससे गिरा, तब यहाँ पे h equal to 0. So total energy equal to sum of potential energy and kinetic energy. h0 means potential energy 0 means kinetic energy equal to half mv square. In other words, kinetic energy at the ground equal to potential energy at the highest point. However, during free fall, the total energy at any instant of falling of a body is mgh. Okay, इसका ऊपर भी न्यूमेरिकल भी आएगा. Okay, so I am in a quick hand. I am doing some important numerical. If the speed of a car is half, how does its kinetic energy change? Solution number 1. K1 equal to half m v1 square. K2 equal to half m v2 square. But v2 equal to v1 by 2 implies K2 equal to half m into v1 by 2 का स्क्वायर
equal to 1 by 4 multiplied by half m v1 square implies K2 equal to 1 by 4 K1. Okay, solution 2. How is the kinetic energy of a moving cart is affected if its mass is doubled and velocity is reduced to 1/3 of its initial velocity? So A K1 equal to half m1 v को कांस्टेंट रखेंगे v स्क्वायर, ओनली मास के बारे में सोचेंगे, K2 इक्वल टू हाफ m2 v स्क्वायर, बट m2 equal to 2m1 implies K2 equal to half into 2m1 into v square implies K2 equal to 2 into half m1 v square implies K2 equal to 2 K1. Okay, then B, if its velocity is reduced to 1/3 of its initial velocity, b K1 equal to m को कांस्टेंट रखेंगे v1 स्क्वायर, K2 equal to half m v2 स्क्वायर, but v2 equal to v1 upon 3 implies K2 equal to half m into v1 upon 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 by 9 of v1 square implies K2 equal to 1 by 9. Okay, so first numerical and second numerical completed. Okay, two bodies have masses in the ratio masses in the ratio 5:1. Masses in the ratio 5:1 and kinetic energy in the ratio 125:9. Find the ratio of their velocities. So this is one board question before 2-3 years. So K1 is to K2 equal to half m1 v1 square upon half m2 v2 square implies half of Korea K1 is to K2 is equal to short K1 by K2 equal to m1 by m2 into v1 square by v2 square implies K1 upon K2 कितना है 125:9 equal to 5:1 into v1 square by v2 square implies v1 square by v2 square equal to 25/9 implies v1 is to v2 equal to 5:3. Okay, so this one completed. Number 4. One complete, two complete, three complete, 4. A hydroelectric power station takes its water from a lake for जो water level is at a depth 50 meter above the turbine. Suppose ये है turbine यहाँ पर है, यहाँ पे ये इक्वल टू 50 मीटर. ओके, assuming overall efficiency 40%, efficiency
overall equal to 0.4. Okay. Calculate the mass of water which must flow through the turbine in each second to produce power output of 1 megawatt. Time equal to 1 second. Power output equal to 1 megawatt. 1 megawatt equal to 10 to the power 6 watt. Efficiency equal to power output by power input. We have power input कितना है? Power input equal to mgh upon t. m कितना है? कैलकुलेट मास ऑफ वाटर m निकालना है. m इंटू जी 10 दे रखा है, ये 550 दे रखा है, ये 1 इक्वल टू 500 m watt. Okay, implies 0.4 equal to power output 10 to the power 6, power output 500 m implies m equal to 10 to the power 6 by 4 into 10 into 500. ये 2 काट दो, ये 4 हो गया. तो implies m equal to 10 into, इसको 100 कर दो 100 into 10 to the power 3 upon 25 equal to 5000 kg. Okay. इसको 100 कर देने पर 10 to the 3. Okay. Then the bob of a simple pendulum. एक्चुअली नियम का अनुसार टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. मैंने कहा ये मीन पोजीशन. मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे बी 0. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एट ग्राउंड हम लिखेंगे. लेकिन वो क्या कहा, ये 60 एस्टीम पोजीशन में जो पहुंचेगा 60% ऑफ एनर्जी लॉस्ट, तब रहेगा 40%. टोटल एनर्जी क्वेश्चन का अनुसार टोटल एनर्जी एट बी होना चाहिए टोटल एनर्जी एट ए, बट 40% 0.4 ऑफ टोटल एनर्जी एट ए इम्प्लाइज टोटल एनर्जी एट बी होता है mgh इक्वल टू 0.4 इंटू हाफ एम स्क्वायर 5 इंटू 5. तो ये हो गया एम काट दो. ओके, तो अब ये हो गया कितना है 0.2, तो वो हुआ 50. तो जी हो गया 10 इंटू एच इक्वल टू 2/10 इंटू 25 to 5. तो 5
implies AH equal to 5 upon 10.5 meter. Okay. Then number 6, the power of a motor is 40 kilowatt. P equal to 40 kilowatt equal to 40,000 watt. P equal to और क्या दिया हुआ, F दिया हुआ 20,000 न्यूटन. वही है P equal to FV implies 40,000 equal to F कितना है 20,000 into V implies V equal to 2 meter per second. Okay. Then number 7 यही पर हो जाएगा. A pump is used to lift 5 kg of water from a depth of 8 meter, 58 meter in 10 seconds. The work done by the pump. तो सीधा लिख देते work done by the pump equal to mgh. G तो 10 दे रखा है equal to m कितना है 500 into 10 into 80 40 1 2 3 4 3 4 8 5 the 40 40 1 2 3 4 हाँ ये हो गया जूल. ओके कितना जूल हो गया. तो हम इसको लिख सकते 4 into 10 to the power 5 1 2 3 4 5 जूल. The power at which the pump works 10 सेकेंड दे रखा है. पावर at which the pump works means output power equal to work done by time implies 40 के पास इसे कर दो 40 1 2 3 4 बाई टाइम कितना दे रखा है टाइम 10 इक्वल टू 40 किलोवाट कर दो. वाट means 40,000 watt means 40 kilowatt. Okay. तो थर्ड बिट efficiency 40%, 0.4 equal to power output by power input implies 0.4 power output हुआ 40 by power input equal to implies power input equal to 40 divided by 4 into 10 equal to 100 kilowatt. Okay, so this one completed. So this is work power energy. This is completed. So now some rest portion, that is briefly I am telling you radioactivity. So radioactivity में first होता है और this one is called nuclear physics. What are isotopes? Same element having same atoms of same element having same atomic number, different mass number. Carbon 612, carbon 614. Then isobars, atoms of different elements having different atomic number, same mass number. Sodium 1123, magnesium 1223. Okay. Then what is radioactivity? The phenomenon by which certain elements emits harmful radiations due to decay inside in their nucleus is called radioactivity.
radioactivity, and the substance which emits radioactive radiation are called radioactive materials. Or you can say the phenomenon by which certain substances emits alpha particles and gamma radiations due to change in their nucleus is called radioactivity. Okay, एक्चुअली वो जो अल्फा बीटा गामा, सपोज हम एक लीड बॉक्स का अंदर रखेंगे, कोई रेडियम को रखे, थोड़ा सा वहाँ होल रहेगा, वो तीन रेडिएशन ऊपर जाएंगे, गामा स्टेट जाएगा बिकॉज गामा इज न्यूट्रल. सपोज इसको एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पास किए, बीटा ज़्यादा बैंड होता है क्योंकि बीटा का मास नेग्लिजिबल होता है, लेकिन बीटा नेगेटिव पार्टिकल, इसीलिए वो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा. इसका भी एक फिगर एग्जाम में आता. देन ये जो अल्फा बीटा गामा, ये क्यों रेडियोएक्टिव होते हैं? कुछ एलिमेंट, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मोर देन 82 लीड के एटॉमिक नंबर से ज्यादा होते हैं, इनका आइसोटोप जनरली रेडियोएक्टिव रहते हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इनसाइड देयर न्यूक्लियस. ये अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये क्या होता है, तो इसका अंदर न्यूक्लियस का अंदर कुछ चेंजेस होता है. वो चेंजेस की वजह से वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन तीनों बाहर को निकालते हैं. अल्फा को हम पार्टिकल कहेंगे, बीटा को पार्टिकल कहेंगे बिकॉज दे हैव मास, बट गामा इज रेडिएशन बिकॉज इट हैज नो मास, because it is like light. Okay, it has no mass. Okay, then ये जो अल्फा बीटा गामा तीन आएंगे, तो इनमें से हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता है ये डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम. अल्फा पार्टिकल इज ए डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम. ओके, एक हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इससे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो बहुत एक्साइट हो जाता, दैट इज द अल्फा पार्टिकल. ओके, सो यू कैन इजीली कवर द न्यूमेरिकल x. ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर. सपोज ये एक अल्फा पार्टिकल देता है, सो दिस वन x1 z-2, ये 2 कम होगा, ये a-4 प्लस अल्फा पार्टिकल. सपोज बीटा पार्टिकल x z a बीटा, ये x1 z प्लस 1, ये वही a रहेगा प्लस ये बीटा पार्टिकल इज ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. और कभी कभी इसको ऐसे लिखा जाता बीटा -1. सपोज गामा रेडिएशन होगा, वही जेड रहेगा, ये रहेगा प्लस एनर्जी, इसमें कुछ चेंज नहीं होता. वो तीनों में एनर्जी निकलता, लेकिन यहाँ पे कभी कभी हम इतना ही लिखते हैं, एनर्जी नहीं लिखते. गामा में कुछ चेंज नहीं होता. ओके, ये जो अल्फा पार्टिकल निकलने का कारण होता है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस का अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होता है, लेकिन बीटा पार्टिकल का कारण भी वही होता है. लेकिन बीटा पार्टिकल जब निकलता है इलेक्ट्रॉन, तब वो बाहर निकल के आ जाता न्यूक्लियस से, क्योंकि बिकॉज ए न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन. लेकिन अल्फा पार्टिकल में कुछ चेंज नहीं होता, खाली अनस्टेबिलिटी के कारण वहां पे वो जो रेडिएशन निकलता है उसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं. बीटा पार्टिकल में तो रेडिएशन निकलता, इसके बाद वहां पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को चेंज होता, एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन. दैट इलेक्ट्रॉन्स कम आउटसाइड द न्यूक्लियस बट विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय how radioactivity is related to oxidation or any chemical bonding or other orbital phenomena. हम कहेंगे radioactivity is a nuclear phenomena but oxidation and chemical bonding is a orbital phenomena. So radioactivity होता है न्यूक्लियस का अंदर चेंज होने के कारण,
बट ऑक्सीडेशन केमिकल बॉन्डिंग होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माने देने पर या लेने पर. सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन और केमिकल बॉन्डिंग विथ रेडियो एक्टिविटी. ओके, देन इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है. ओके, नेक्स्ट वन. तब हम कहेंगे तो इसका सब क्या होता है प्रॉपर्टी, जैसे स्पीड अल्फा बीटा गामा. गामा का स्पीड लाइट का स्पीड के साथ समान होता है. बीटा का स्पीड थोड़ा सा कम होता है 2.7 into 10 to the power 8 लाइट स्पीड से थोड़ा कम होता है. लेकिन अल्फा का स्पीड 10 to the power 6 का ऑर्डर में रहता है. ओके, सबसे कम होता है. तापर आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम इसका सबसे मैक्सिमम होता है अल्फा का 10,000 टाइम देन गामा. बीटा का इससे कम 1000 टाइम देन गामा. सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर अल्फा का देन बीटा का देन गामा का. देन पेनिट्रेटिंग पावर वेरी स्मॉल किसका अल्फा का एक्चुअली 3 to 85 सेंटीमीटर इन एयर. देन बीटा का अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन एयर थोड़ा सा ज्यादा. गामा का अप टू फ्यू मीटर इन एयर ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा का होता है. ओके, देन बायोलॉजिकल डैमेज अल्फा थोड़ा कम करता बायोलॉजिकल डैमेज, बीटा इससे ज्यादा करता, गामा इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज करता. इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना. इसके बाद आता है रेडियो आइसोटॉप्स. कुछ एलिमेंट होते हैं इनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता फिर भी अनस्टेबल होते और रेडियो एक्टिव होते. लाइक कार्बन C14, ओके K40 इनका तो एटॉमिक नंबर 82 से कम है फिर वो रेडियो एक्टिव कैसे है. लेकिन उससे वे सबको रेडियो आइसोटॉप्स कहा जाता है. ये भी आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बना भी जा सकता. ओके, ये रेडियो आइसोटॉप का बहुत सा एप्लीकेशन होता है. जैसे C60 माने कोबाल्ट 60 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, कैंसर जर्म्स और कैंसर सेल्स. ओके, अच्छा गामा इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग पर्पजेस जैसे इंजेक्शन सिरिंज वगैरह इसको सब धोने के लिए. C14 इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग और फॉर द मेजरिंग द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स. जो ओल्ड माने मोनोमेंट्स ये सब का एज मापने के लिए तो जो कार्बन डेटिंग किया जाता वो C14 में. बीटा इज यूज्ड टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर, प्लास्टिक्स, मेटल स्ट्रिप्स एसेट्रा. ओके, ये हो गया. इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, ये भी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? द फेनोमेनन बाय व्हिच टू स्मॉल न्यूक्लियस, when a big nucleus, heavy nucleus split into two small nuclei. Okay, when a slow moving neutron is bombarded with it, then it is called nuclear fission. In a nuclear fission, chain reaction is possible. Okay, but nuclear fusion क्या होता है? The phenomenon by which two light nuclei fuse together to form a big or massive nucleus is called nuclear fusion. तो अब न्यूक्लियर फिशन हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है. न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में होता है, सूरज में होता है. वहाँ दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक हीलियम न्यूक्लियस को चेंज होता. अच्छा, न्यूक्लियर फिशन इज बेस्ड ऑन द अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन. हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिशन में थोड़ा एनर्जी तो निकलता, हैवी एनर्जी, लेकिन थोड़ा कम निकलता इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फ्यूजन. ओके, देन न्यूक्लियर फिशन में ज्यादा पोल्यूशन फैलता है. ओके, कि लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में थोड़ा कम पोल्यूशन निकलता. क्यों? एक्चुअली न्यूक्लियर फिशन में जो वेस्ट निकलता इसको हम फर्दर क्या होता है वो माने कंट्रोल नहीं कर पाते. लेकिन फ्यूजन में क्या होता है जो रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता. फिशन में जो निकलता और रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता. ओके, देन
nuclear fission is possible at a high pressure and temperature, but nuclear fission is possible at ordinary temperature and pressure. क्यों? Because जब हाई टेम्परेचर प्रेशर में, बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेस टुगेदर, जब दो न्यूक्लियस जब कंबाइन हो जाएंगे, इनका बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका जो क्लोज होने के कारण ये रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा रहेगा, तब इसीलिए न्यूक्लियर फिजन में हमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। न्यूक्लियर फिशन लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर में हो सकता है। ओके, देन एक क्वेश्चन भी आ सकता, जैसे व्हाई यूरानियम 235 यूरानियम 238, इन दोनों में से कौन ज्यादा रेडियोएक्टिव? नेचुरली तुम कहेंगे U238, नो, आंसर इज U235. Since U238 has even number of nucleons, it is in a lower energy state. Then if it had an odd number of nucleons like uranium 235, okay, यूरानियम 238 में इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रहने के कारण वो थोड़ा स्टेबल रहता है या लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है। ओके, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और है, जैसे बैकग्राउंड रेडिएशन, द रेडियोएक्टिव रेडिएशन टू व्हिच वी ऑल आर एक्सपोज्ड इवन विदाउट आवर नॉलेज इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। ये रेडिएशन को हम सब एक्सपोज होते हैं लेकिन अनजान में। ये क्या होता है? इंटरनल होता है, जैसे K40, K40, C14। एक्सटर्नल होता है कॉस्मिक रेज, रेडियम 222, ये सब एक्सटर्नल होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कर दूं मैं। सपोज ये क्या होता है, हाउ मेनी alpha and beta particles are emitted when uranium 92-238 changes to Pb 82 और ऊपर वाला 206। ओके, आंसर शॉर्ट आंसर में कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड इक्वल टू x एंड बीटा पार्टिकल्स इक्वल टू y। ओके, सॉल्विंग फॉर मास नंबर में अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 कम हो जाता, सब 238 माइनस 4x, वो कितना होगा? लेकिन मास नंबर बीटा पार्टिकल एमिशन में मास नंबर का कुछ चेंज नहीं होता, इक्वल टू 206। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब तो ये होगा 206 implies 4x equal to 238 minus 206 implies 4x equal to 32, x equal to 8। तब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड 8। सॉल्विंग फॉर एटॉमिक नंबर्स, सॉल्विंग फॉर मास नंबर, सॉल्विंग फॉर एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर कितना कम होता है? 2। ये कितने एटॉमिक नंबर दे रखा है? 92। एक अल्फा पार्टिकल में 2 एटॉमिक नंबर भी एमिट होता है, 2 into 8, ये वाला 8 मतलब ये x। ओके, अल्फा पार्टिकल इतना होगा 2 into 8, लेकिन बीटा के लिए एक जुड़ेगा 1, बीटा पर मैंने Z1 बढ़ेगा, इक्वल टू कितना होगा? आउटपुट कितना हुआ तुम्हारा? आया लास्ट में 82।
implies 92 minus 16 plus y equal to 82 implies 76 plus y equal to 82 implies y equal to 82 minus 70 equal to 6 means alpha particle 8 beta particle 6. ओके, ये लगभग कंप्लीट हो गया. थोड़ा सा बचा, जैसे हम रेडियो एक्टिव रेडिएशन से कैसे सेव होंगे. द पीपुल हु आर वर्किंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, दे शुड पुट लीड लाइन, माने दे शुड यूज वेयर लीड लाइन्स aprons and lead line माने lead made gloves when they work there. So the second point, the radioactive wastes should be buried deep inside the earth, putting in a lead box. एक लीड बॉक्स का अंदर इसको रख के अगर अर्थ का नीचे 70 मीटर नीचे अगर हम रखेंगे तो भी इसका परेशानियां का कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि लीड को वो भेद करके बाहर नहीं आ पाता. और जो लोग वहाँ काम करते, वो जो ग्लोव्स यूज करते और जो ड्रेस पहनते, दे शुड बी लीड लाइन. अगर ऐसे करेंगे तो अब रेडियो एक्टिव रेडिएशन से हम थोड़ा बच सकते हैं. भले ये बहुत डेंजरियस है, स्टिल भी माने ह्यूमन अवेयरनेस इज द बेस्ट आंसर. सो व्हाइल वर्किंग इन एनीथिंग, सो ह्यूमन awareness is the only positive step for doing any act. Okay, so anyhow today almost दो chapter work power energy as well as the radioactivity, दो long chapter I completed, because I hope in maximum school for class 10 midterm examination these two chapter I think they are the common chapter. So I taught these two chapters. Okay, with this I remain. Thank you very much.